Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, today date is 7 April 2021 and I am teaching you chapter number 1 and name of the chapter is family. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, student, I explained you the definition of a family. What is family? A group of people who are united by birth, marriage or adoption form a family. Is it clear? A group of people who are united by birth, marriage or adoption form a family. So student, after that we are now in today's video we will discuss types of a family. So when we are talking types of family. So types of family, then it is divided into two parts, that is joint family and another is known as nuclear family. So when we start discussing about the family, then family is further divided into two types which is given in your book that we have to discuss, that is joint family and nuclear family. So joint family, so student, let's start with the joint family. Okay. Joint family so what is the definition of a joint family? A joint family is joint family is a large family. Joint family is a large family, and now what are the members of the joint family? The grandparents, parents, grandparents, parents, and children, all live together. See, a
A joint family is a large family. The grandparents, parents and children all live together. So this is a joint family. Okay, and in some joint family, the more members you will see, like in some joint families, in some joint families, you will see uncles, aunts and their children also live together. Is it clear? See, joint family. What is a joint family? A joint family is a large family. Now, in joint family, what are the members of the joint family, student? Members are the grandparents, parents and children. And in some of the joint family, you will also see uncles and aunts and their children also live together. So this is the joint family. So this is a joint family. Now see, student, even I have already given you one homework in online class also, that you draw family tree, your family tree, with the help of your parent. Is it clear? You draw a family tree with the help of your parent. Now see, student, what are the, अब जॉइंट फैमिली क्या होती है उसका डिस्कस हमने कर लिया बेटा, कि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके दादा दादी हो गए, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं। और जॉइंट फैमिली, कुछ जॉइंट फैमिलीज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी भी होते हैं, आपके अंकल और आंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फादर ब्रदर, अगर आपके पापा के भाई हैं तो वो आपके क्या वो लगे, अंकल लगे, ठीक है। और फादर के जो ब्रदर हैं, उनकी वाइफ हैं, तो वो आपकी क्या लगी, आंट लगी। तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ जॉइंट फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके अंकल आंट भी होते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो, ठीक है। कुछ जॉइंट फैमिलीज ऐसी भी होती हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कजन्स, सिबलिंग्स? वन मोर टाइम सी ऑन द बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रोहन and this is Seema. Okay, both of them married and now they have 2 kids. Rohan, I am just giving the example so that you understand what is the meaning of the word siblings. For example, this is Rohan and Seema, both married. Now after marriage they have 2 kids. One is Rahul and one is Saroj, ठीक है। So what is the relation of Rahul and Saroj with Rohan, Seema? तो रोहन एंड सीमा, दे आर पेरेंट्स ऑफ राहुल एंड सरोज, दे आर पेरेंट्स ऑफ राहुल और सरोज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिबलिंग्स? हाउ वी से, इफ सी इन दिस फ्लो चार्ट, राहुल मदर इज सीमा and Saroj mother is also Seema. So it means that both kids having the same mother,
सो दे आर नोन एज सिबलिंग्स। ठीक है, रोहन और सीमा क्या है, ये पेरेंट्स हैं, दे आर पेरेंट्स, और ये किसके पेरेंट्स हैं, राहुल एंड सरोज। इज इट क्लियर? एंड वाई वी से राहुल एंड सरोज सिबलिंग्स? बिकॉज राहुल और सरोज को हम लोग सिबलिंग्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा राहुल की मम्मी और सरोज दोनों की मम्मी सेम है, सीमा। इसलिए जब सेम मम्मी के, जैसे सीमा, ठीक है, राहुल की मम्मी भी सीमा है, सरोज की मम्मी भी सीमा है, सो दैट इज द रीजन ये क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। ये क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। और ये क्या है, इनकी राहुल और सरोज, इनके आपस में क्या रिलेशन है, दे आर ब्रदर सिस्टर, दे बोथ आर ब्रदर एंड sister, they both are, what is the relation between Rahul and Saroj? They both are brother and sister. Is it clear? They both are brother and sister. Now next thing is just now we discuss about a joint family. Now see what are the advantages, what are the advantage of a joint family। अगर आप ऐसी फैमिली में रह रहे हो बेटा जो जॉइंट फैमिली है, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल्स भी हैं, आंट्स भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, अगर आप ऐसी फैमिली में रह रहे हो तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली, व्हाट आर द बेनिफिट्स? Children of such family families are always surrounded by people and they are never lonely. So what does it mean? It means that if you are a member of a joint family, अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो ऐसी फैमिली में जो बच्चे रहते हैं उनको देखने के लिए बहुत से लोग होते हैं घर में। ऐसे बच्चे कभी अकेले नहीं होते, ठीक है। कभी कभी देखो बेटा, अभी ये जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फादर होंगे, मदर होंगे और चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो फादर भी वर्किंग पे जाते हैं, मम्मी भी वर्किंग पे जा रही है, दोनों जॉब में हैं, फादर इज ऑल्सो डूइंग द जॉब, मदर इज ऑल्सो डूइंग द जॉब। तो ऐसे में क्या है, बच्चों को अकेले भी घर में रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जॉइंट फैमिली की क्या है, जॉइंट फैमिली में मेंबर्स बहुत होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, अंकल भी, आंट होंगे, उनके चिल्ड्रन भी होंगे। अगर इफ यू आर ए मेंबर ऑफ ए जॉइंट फैमिली तो आपको देखने के लिए बहुत से लोग होंगे आपकी फैमिली में। ऐसे में आपको कभी भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बेनिफिट है किसका, जॉइंट फैमिली का। अगर जॉइंट फैमिली में आपके फादर इज आल्सो डूइंग द जॉब या मदर इज आल्सो डूइंग द जॉब, तो देयर आर अदर पर्सन इन योर फैमिली लाइक योर ग्रैंड पेरेंट, अंकल एंड आंट्स हु कैन टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपके मम्मी पापा अगर जॉब दोनों करते हैं तो भी आपकी फैमिली में बहुत लोग हैं जो आपको देख सकते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स,
दादा दादी या आपके अंकल आंट हैं, वो भी आपको दे आल्सो टेक केयर ऑफ यू। तो ऐसी फैमिली में बच्चों को अकेले नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत बेनिफिट है ज्वाइंट फैमिली की। सेकंड है इन ए जॉइंट फैमिली एवरी मेंबर डज हिज हर शेयर ऑफ वर्क, ठीक है। इन ए जॉइंट फैमिली, in a joint family every member in a joint family every member does his or her share of वर्क। देखो जॉइंट फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, तो जो हाउस होल्ड वर्क भी है, जैसे घर में बहुत सा काम होता है, देखते होंगे आप लोग की मम्मी लोग हमेशा घर क्लीन करती हैं, दे कुक फूड फॉर यू, दे वॉश योर क्लोथ्स, इवन योर मदर टीच यू। सो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मेंबर्स ज्यादा होने से जो आपस में वर्क होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दिस इज आल्सो ए बेनिफिट ऑफ ए जॉइंट फैमिली, ठीक है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो जो वर्क है, जो डेली वर्क होता है, डेली जो हाउस का वर्क होता है, जैसे कुकिंग ऑफ द फूड है, क्लीनिंग ऑफ द हाउस है, टीचिंग ऑफ द किड्स है, सो और भी अदर वर्क्स हैं, ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, टेकिंग समवन टू द हॉस्पिटल। सो ज्यादा मेंबर्स होने से क्या होता है कि वर्क जो है सारे मेंबर्स में इक्वल, सारे मेंबर्स में वर्क डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, ठीक है। सब वर्क जो है अगर उसको शेयर भी कर लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन देखो अगर यही क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ तुम्हारे ओनली फादर मदर एंड चिल्ड्रन है, तो यू गो टू स्कूल डेली, योर मदर क्लीन द हाउस, शी कुक फूड फॉर यू, इवन शी टीचेस यू, एंड ऑल द हाउस वर्क इज डन बाय योर मदर, ओके। सो ऐसा ज्वाइंट फैमिली में नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में वर्क क्या आपस में शेयर भी हो जाता है, इज इट क्लियर? देयर आर अदर मेंबर्स आल्सो हु कैन हेल्प। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली। इन ए ज्वाइंट फैमिली एवरी मेंबर डज हिज और हर शेयर ऑफ वर्क। ऐसा आपके न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है, इज इट क्लियर? न्यूक्लियर फैमिली में मदर है, फादर है, चिल्ड्रन है, सो इस तरह से वर्क शेयर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इज चिल्ड्रन are taken care by the grandparents, okay। चिल्ड्रन आर टेकन केयर बाय द ग्रैंड पेरेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर कौन कर लेते हैं? उनके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। एंड इन अ न्यूक्लियर फैमिली whole responsibility is of your parents, because in nuclear family is a small family, father, mother and children, so whole responsibility of the family is on the parents की पूरी responsibility होती है children के लिए, ठीक है। लेकिन joint family में क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी they can also take care of you, their uncle and aunt also take care and even your parents also. So there are many members who can take care of the children in a joint family. So this is all about the joint family. And one more thing, एक इसकी रिकैपिटुलेशन करा देते हैं आप लोगों को,
ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली, ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ फैमिली में अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली के लिए मैंने क्या बोला, व्हाट आर द मेंबर ऑफ ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे और चिल्ड्रन होंगे। बट इन सम जॉइंट फैमिली द मेंबर, देयर आर मोर मेंबर्स इन द फैमिली। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, इज इट क्लियर, आपके अंकल हैं, आंट हैं, एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो। सो some joint families are very big. Okay, so that is the definition of a joint family. After that, here these 3 points we discuss what are the benefits of the joint family. Children, there are many members in the family who take care of the children, ठीक है। और ऐसे फैमिली के मेंबर्स, जॉइंट फैमिली में बच्चों को अकेले नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली में बच्चों को अकेले नहीं रहना पड़ता। अगर उनके मम्मी पापा जॉब पे भी जाते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट भी दे कैन टेक केयर ऑफ द किड्स। ओके, और इन ए जॉइंट फैमिली सेकंड बेनिफिट डिस्कस किया कि एवरी मेंबर डज हिज हर शेयर ऑफ वर्क। इन जॉइंट फैमिली मेंबर्स आर मोर, सो वर्क दे एवरी मेंबर डू देयर शेयर ऑफ वर्क। जो भी मेंबर है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस क्लीनिंग ऑफ द हाउस है, कुकिंग द फूड है, ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, टेकिंग समवन टू द हॉस्पिटल, सो देयर आर मेनी मेंबर्स हु कैन डू दिस, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट। और चिल्ड्रन आर टेकन केयर बाय द ग्रैंड पेरेंट्स। अब नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली हो गई। नाउ सी वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई गिव यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कजन। ओके, कजन, व्हाट इज कजन, COUSIN। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोहन, सीमा, दे बोथ मैरिड, they both married, now they have 2 kids, Ajay and Vijay. Is it clear? Ajay and Vijay, Rohan and Seema. Now here I am writing Rajesh. Rajesh, who is Rajesh? Rajesh is Rohan brother, ठीक है। Rohan and Seema, Rohan, Rajesh, Rajesh, who is Rajesh? Rajesh is a Rohan brother, ठीक है। राजेश कौन है? रोहन के ब्रदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजेश मैरिड विद अलका। नाउ राजेश मैरिड अलका एंड दे हैव 1 kid named Raju. Now see, Rohan and Seema, they are parents of Ajay and Vijay. Is it clear? So Rohan and Seema, they are parents of Ajay and Vijay. Rohan और Seema Ajay और Vijay के parents हैं. Is it clear? Rajesh and Alka, they are parents of Raju. ठीक? Now Rohan and Rajesh, they both are, what is the relation? Brother. ये दोनों क्या है? Brother है। Rohan is elder and is younger, ठीक है। Rohan and Seema parents of Ajay and Vijay. Rajesh and Alka, they are parents of Raju. And what is the relation of Rohan and Rajesh? Rohan and Rajesh, they both are brother. ये क्या है बेटा? ब्रदर है। इज इट क्लियर? दे आर ब्रदर। नाउ सी अजय एंड विजय, मदर इज सीमा, सो दे आर सिबलिंग्स, ठीक है। अजय विजय, मदर नेम इज सीमा, दे आर सिबलिंग। राजू, मदर नेम इज सीमा, नो,
व्हाट वाज द नेम ऑफ द राजू मदर? राजू की मम्मी का बेटा क्या नाम है? अलका. अलका. इज इट क्लियर? सो अलका इज Raju mother. Now what is the relation between Ajay, Vijay and Raju? What is the relation? What is the relation? अब इनमें क्या रिलेशन होगी? ये आपस में ब्रदर है, बट दे, ये इनमें क्या रिलेशन है? अजय, विजय एंड राजू. ओके. रोहन एंड सीमा पेरेंट्स ऑफ अजय विजय. राजेश एंड अलका पेरेंट्स ऑफ राजू. रोहन एंड राजेश दे बोथ आर ब्रदर. नाउ दे हैव 3 kids. Okay, so what is the relation between Ajay, Vijay and Raju? They all are brother. What is the relation? They all are brother, but they are cousin. They are cousin. Cousin brother. Why? Reason is that Ajay Vijay mother is Seema and Raju mother is Alka. They are not siblings. ठीक है, ये इन दोनों की मम्मी सीमा है, तो ये अजय विजय सिबलिंग्स हुए, इन दोनों की मम्मी एक है. ठीक है, लेकिन सीमा इज नॉट राजू मदर. राजू की मम्मी कौन है? अलका है. इज इट क्लियर? सो इनमें अजय विजय राजू में क्या रिलेशन हुई? ये आपस में भाई तो हैं, बट दे आर कजन ब्रदर. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं. ठीक है. सिबलिंग्स तभी होंगे जैसे कहते हैं ना, हाँ ये मेरा भाई है, मेरा अपना ब्रदर है, ये मेरी अपनी बहन है. इसका मतलब पता है क्या होता है? कि आप जैसे आप बोलते हो ना, आई एम स्टडिंग इन क्लास 3, टीचर आस्क्ड यू बेटा आपका कोई भाई भी है, तो हम बोलते हो हाँ माई ब्रदर स्टडी इन क्लास 7, क्योंकि आप लोग क्या हो? सिबलिंग्स हो. सिबलिंग्स हो, आप दोनों की मम्मी क्या है? सेम है. ठीक है. ये फैमिली सेम है क्योंकि रोहन और राजेश क्या है? ब्रदर है. फैमिली सेम है, लेकिन जो बच्चे हैं अजय विजय और राजू, मदर इज नॉट सेम. तो इसलिए अजय विजय या विजय और राजू में क्या रिलेशन है? ये आपस में ब्रदर तो हैं, लेकिन दे आर कजन ब्रदर. दे आर कजन ब्रदर. ठीक है. बिकॉज राजू मदर नेम इज अलका एंड विजय मदर नेम इज सीमा. दे राजू विजय राजू दे आर नॉट सिबलिंग्स. देयर मदर आर नॉट सेम. देयर रिलेशन इज दे आर ब्रदर बट कजन ब्रदर. ब्रदर है बेटा वो लोग, लेकिन कजन ब्रदर है, क्योंकि विजय और राजू सिबलिंग्स नहीं है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर? ठीक है. सो यहां पे हमने बात की थी रिलेशन क्या है. रिलेशन, so they are brother relation, they are brother, but which type brother? That is cousin. That is cousin brother. Is it clear? So I hope you are able to understand this. Now so in today video student, what are the topics which I covered in this video? Firstly, I started with the definition of a family. What is a family? A group of people who are united by birth, marriage or adoption form a family. This thing we have discussed. After that, I teach you types of family. So when we are talking about types of a family, then it is divided into 2 parts, that is joint family and nuclear family. So after that student, I explain you what is a joint family, what are the benefit of the joint family, and what are the members of the joint family. That I also explain you who are the members of the joint family, what are the benefit of the joint family, and after that with this flow chart I explain you what is the meaning of siblings.
what is the meaning of sibling and what is the meaning of cousin. Okay, thank you student.